Hello friends, welcome to New Era Pathshala Education. Please like and subscribe our channel for complete course and recorded videos of class 10th and to crack all the competitive exams, and don't forget to press the bell icon for more educational videos, and you can also comment us for any queries on our comment box. Thank you. Hello everyone. So how are you all doing? I hope everyone is in high spirits. Well, this is New Era Pathshala Education and I am Sahil, the trainer of English. Today, our topic of discussion is antonyms. Last time we discussed were synonyms, and synonyms are those words which are similar to the meaning or to the word given in the context of a writing or speaking. Antonyms are the words that are used in opposite to the context of given word. कहने का मतलब ये है कि जो एंटोनिम्स होंगे, जो एक वर्ड दिया गया होगा उसका जो विपरीत शब्द होगा वो एंटोनिम होगा. तो आज हम एंटोनिम के ऊपर अच्छे तरीके से प्रकाश डालेंगे. कहने का तात्पर्य है we'll throw light on antonyms today and we'll make sure that we grasp it to the best of our capabilities. Important words starting with letter A and its antonyms. In the last lecture we discussed words starting with letter A and its similar words, that is its synonyms, and today again the criteria or the format will be the same. The word starting with letter A but opposite to its meaning. Okay, the first word, it's a very very important word, abate. So the meaning of abate is moderate or decrease. कहने का मतलब ये है कोई चीज़ में कमी आनी या कोई चीज़ को कांस्टेंट ही रखना, उसको बढ़ने ना देना, उसको अबेट बोलते हैं. और जो इसका एंटोनिम होगा जो कि हमें करना है, ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये अपने आप में ही एक वोकैब वर्ड है. इट इज एग्रावेट एंड द सेकंड वन इज सप्लीमेंट. सी अगेन द थिंग इज दैट नो डाउट आई हैव रिटन टू वर्ड्स बट इट इज योर अंडरस्टैंडिंग, योर सेल्फ स्टडी दैट फ्रॉम टू वर्ड्स if you create 4 and from 4 if you create 8, that is your brain, that is your intelligence, it's not mine. I am just giving you the sample only that the meaning of this word can be this and can be this, and the opposite meaning of abate can be this as well as this, and there can be 2 to 5 meanings also. It's your capability, it's your ability and it's your potential, how much to gain, how much to grasp and how much to use in a practical manner. Okay, the second most important thing that I want to tell is I have written the words only today, you would have noticed, but I haven't framed sentences. Again, because sentences have to be framed by you. It's not about spoon feeding all the time that मैंने आपको कोई वर्ड कराया उसका सेंटेंस भी मैं ही बता रहा हूँ. हाँ, थोड़े बहुत सेंटेंस आपसे डिस्कस भी करूँगा, लेकिन ये ज़्यादा आपकी ही जिम्मेवारी होगी कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से पढ़े, उसको सेंटेंस में लेकर आएँ. क्योंकि आपने यहाँ से अगर गौर किया होगा तो आपने पांच शब्द सीखे हैं, 5 वर्ड्स. आपने अबेट भी सीखा, आपने मॉडरेट भी सीखा, आपने डिक्रीज भी सीखा है, ये सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में सीखा है, आपने इसका ऑपोजिट भी सीखा है, एंटोनिम भी सीखा है, एग्रावेट भी सीखा और सप्लीमेंट भी सीखा. और ये सभी वर्ड्स के आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए. इफ यू आर नॉट पुटिंग दीज वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस, दैट इज एब्सोल्युटली इन वेन, इट इज फ्यूटाइल, इट इज ऑफ नो यूज. ठीक है जी. तो इसका मैं अगर आपको थोड़ा सा सेंटेंस बताऊं तो आप ये भी बना सकते हो. जैसे अबेट का अगर हम इस पे मीनिंग अगर करें, मतलब ये सिनोनिम ही है एक तरीके से, मॉडरेट और डिक्रीज, तो हम क्या कह सकते हैं. लाइक वही एग्जांपल लूंगा मैं अम्फान साइक्लोन की. द साइक्लोन अम्फान आफ्टर इट स्टक द बे ऑफ बंगाल, after it struck West Bengal, it
वॉज मॉडरेटेड, या द इम्पैक्ट और द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर साइक्लोन गॉट डिक्रीज्ड, गॉट अबेटेड। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यूज करना है वर्ड को। और अब हम इसके एंटोनिम पे आते हैं, जिसका मतलब है एग्रावेट या सप्लीमेंट। इसका मतलब होता है कोई चीज को इंक्रीज कर देना, किसी चीज में बढ़ोतरी कर देना। ठीक है, अब इसकी सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम, जैसे हम ये बना सकते हैं लाइक द करंट सिचुएशन और द करंट सिनेरियो विच इज गोइंग ऑन, द चाइनीज ट्रूप्स ब्रॉट ऑल इट्स आर्सेनल इनटू द बॉर्डर या across the LOC, just aggravating और supplementing the situation। मतलब कि जो आपको पता है चाइना के साथ थोड़ा सा इंडिया का, हमारा भारत का थोड़ा सा खटास चल रही है, तो उसमें क्या हुआ है, जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो अपना सारा असला बारूद लेकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जिससे क्या हुआ है कि जो सिचुएशन बनी है उसमें जो टेंस सिचुएशन बनी है, बहुत ही टेंशन पूर्वक जो कि टेंशन भरी सिचुएशन बनी है, उसमें बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है, वो सिचुएशन एग्रावेट कर गई है। तो अब देखिए, व्हेन वी आर डूइंग दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, व्हेन वी आर डिस्कसिंग सेंटेंसेस ऑफ ए वर्ड, व्हेन वी आर मेकिंग स्टोरीज रिलेटेड टू वर्ड, तो आपको ये वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वर्ड ऑटोमेटिकली ही याद रहेगा आपके दिमाग में अपने आप ही। जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, जब भी आना होगा ये वर्ड अपने आप ही आएगा, एफर्टलेसली आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, आपको दिमाग में ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग फर्दर, सेंटेंसेस ज़रूर बनाने हैं आपने, इतना याद रखिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेंटेंसेस नहीं बनाए या इस वर्ड्स के कोई लाइंस नहीं पढ़ी, उसको समझा नहीं, तो ये वर्ड्स किसी काम के नहीं है। बेट शबेट जो मर्जी हो सब भूल जाएगा। अच्छा जी, आगे देखिए जी, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है, इसका ये मीनिंग है, ये जो वर्ड्स हैं ये मीनिंग है, और ये जो वर्ड्स है ये एंटोनिम्स है, मतलब कि ये ऑपोजिट है उसके। एब्जेक्ट का वैसे मीनिंग होता है वेरी बैड या अनप्लेजेंट। उसको डेस्पिकेबल भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है, आप कहीं भी सुन सकते हो, डेस्पिकेबल। और एक वर्ड और है सर्वाइल, ये ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाइल। सो मतलब एब्जेक्ट भी हमने एक वो कैब सीखी है, मतलब एक वर्ड सीखा है, उसके सिनोनिम भी सीखे हैं, जिसको कि बोलते हैं एब्जेक्ट वेरी बैड, कोई भी बहुत बैड सिचुएशन होनी। ठीक है, अनप्लेजेंट वही होता है, अनप्लेजेंट मतलब कि जो आंखों से अच्छी सिचुएशन नहीं है, मतलब जो देखने लायक सिचुएशन नहीं है, उसको हम अनप्लेजेंट बोलते हैं। तो जो है, और डेस्पिकेबल भी बोलते हैं, ये अच्छा वर्ड है, वोकैबुलरी, डेस्पिकेबल और सर्वाइल। ठीक है, तो इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम, जैसे एब्जेक्ट का, एब्जेक्ट पॉवर्टी इज एक्सट्रीमली बैड फॉर एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, वो बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब अनप्लेजेंट, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी बहुत खराब है एक देश के लिए। ठीक है, तो एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होगा बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट, बहुत ज़्यादा डेस्पिकेबल। जो पॉवर्टी है गरीबी, तो वो बहुत बहुत खराब है एक देश के लिए, जो कि सही भी है, क्योंकि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी रिड कंट्री होनी चाहिए, गरीबी मुक्त जो कोई भी देश है वो होना चाहिए, तभी उस देश की तरक्की का पैमाना नापा जा सकता है अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की। एब्जेक्ट का ऑपोजिट होगा कमेंडेबल एंड प्रेजवर्दी। देखो कितना अच्छा वर्ड है, कमेंडेबल, COMMENDABLE। देखिए ये BLE इसके साथ ही है, ये अलग नहीं है। कमेंडेबल, प्रेजवर्दी और RTHY, प्रेजवर्दी के मतलब WO के साथ ही है RTHY, कमेंडेबल एंड प्रेजवर्दी। अब इसके आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, अब देखो क्या बनाए हम सेंटेंस। ओके, वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ रोहित शर्मा, फेमस क्रिकेटर, like what we can say, okay, Rohit Sharma scored 5 centuries in 2019 World Cup, and that is something quite commendable.
दैट इज समथिंग वेरी मच प्रेज वर्दी। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। मतलब कि कमेंडेबल मतलब बहुत बहुत कमाल कर दिया किसी ने कुछ, उसको बोलते हैं हम। और प्रेज वर्दी भी यही होता है कि जिससे हम कोई दूसरा बंदा है उसकी बहुत सराहना करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसको एब्जेक्ट नहीं बोलते, एब्जेक्ट को ये बोलते हैं, उसको हम एब्जेक्ट का ऑपोजिट बोलते हैं। ठीक है जी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला जो पोर्शन है सारा ये मीनिंग्स हैं, मतलब एक तरह के सिनोनिम्स हैं, और ये जो है ये एंटोनिम्स हैं, ये ऑपोजिट वर्ड हो गया उसका, एब्जेक्ट का। आगे चलते हैं, एब्जर्ड। ठीक है जी, एब्जर्ड। ओके, तो इसमें इसका मीनिंग क्या होता है वैसे? एब्जर्ड का मीनिंग होता है फोरसेक, रिनाउंस, ये इकट्ठा ही वर्ड है। ठीक है, एब्जर्ड का मीनिंग होता है फोरसेक और रिनाउंस। एंड आई डोंट नो फोरसेक आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं, बट फोरसेक हमने लास्ट किया भी था। फोरसेक का मतलब किया था, क्या किया था याद कीजिए, त्याग करना। रिलैंक्विश ये भी किया था। फोरसेक छोड़ देना, त्याग कर देना। अबैंडन याद आया कुछ? तो देखिए आपको एब्जर्व भी मिल गया, रिनाउंस भी मिल गया। तो ये हमने इसकी एग्जांपल कर रखी है कि द किंग एब्जर्ड द थ्रोन आफ्टर हिज डिफीट, मतलब उसने अपना जो सिंहासन है उसका त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया जब वो हार गया। और इसका ऑपोजिट देखते हैं, मतलब कि इसका एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम क्या होगा? अप्रूव, सैंक्शन। ठीक है, मतलब कोई चीज मान लेना, अप्रूव कर देना। ठीक है जी, कोई भी जैसे कोई चीज है तो उसको हमने सहमति दे देनी, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो अप्रूव, अब इसमें क्या बोल सकते हैं हम? अप्रूव में हम ये बोल सकते हैं द गवर्नमेंट अप्रूव्ड 3 लाख करोड़ लोन टू द MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ का लोन अप्रूव किया है, सैंक्शन किया है MSME उद्योगों के लिए। मतलब जो लघु मध्यम ऐसे करके बोलते हैं उसको, लघु मध्यम जो क्षेत्र है उसके लिए सरकार ने ये प्रावधान दिया है। ठीक है जी, तो हमने ऐसे करके कोई भी, अगेन आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, if you are bringing a particular word in a sentence and that sentence looks meaningful, it looks logical, it is full of reasoning, it is creating some kind of story in your mind, then that word will be coming very much effortlessly। बार बार ये वर्ड बोलूंगा मैं effortlessly, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा आपके दिमाग में ये वर्ड कब किया था, क्या था, ये है वो है, अपने आप ये वर्ड्स आएंगे। और जब भी आप ये वर्ड्स कहीं भी पढ़ोगे तो आपको 1 मिनट का 1 सेकंड में समझ आएंगे। तो जब आपको 1 सेकंड में समझ आ गया, इसका मतलब आपकी टाइम की बचत होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए ये वर्ड देखिए, अबॉर्टिव। अरे बड़ा अच्छा वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है वेन, अनप्रोडक्टिव। अबॉर्टिव भी हमने किया था लास्ट, अगर आपको याद होगा तो सिनोनिम में किया था अबॉर्टिव, वेन, अनप्रोडक्टिव। मतलब द लैंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी बैरन, द लैंड दैट इज नॉट फर्टाइल इज एब्सोल्युटली अबॉर्टिव, मतलब उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उसको बोलते हैं इन वेन। इन वेन मतलब फालतू। ठीक है, अनप्रोडक्टिव जिससे कोई पैदावार नहीं होने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबॉर्टिव। और अगर इसका कोई और सेंटेंस बनाए तो क्या बना सकते हैं हम? ओके, टू ओपन द बिजनेसेस एंड रन इट टू इट्स फुलेस्ट इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन इज एब्सोल्युटली अबॉर्टिव, मतलब कि वो फालतूगिरी होगी, कोई फायदा ही नहीं होगा, कस्टमर ही नहीं आएगा जब मार्केट में कुछ खरीदने हैं। जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे हम जो बड़ी इंडस्ट्रीज है अगर उनकी बात कर लें, जैसे कार इंडस्ट्री होगी, तो अभी जो कार की डिमांड इतनी नहीं है, तो कार की डिमांड अभी फिर 6-7 महीने बाद आएगी, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो ठीक है जी, अभी फिलहाल के लिए इस दौर में कार खरीदना बहुत अबॉर्टिव होगा, या इंडस्ट्री रन करना बहुत अबॉर्टिव होगा, अनप्रोडक्टिव होगा, फालतूगिरी होगी, पैसा खर्च होगा। ठीक है,
तो ये आप अबॉर्टिव का ऐसे करके मतलब अगेन आपको सेंटेंस में डालना ही पड़ेगा, आपको उसकी स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको कोई बात कहनी पड़ेगी, अंग्रेजी में कहनी पड़ेगी। ये तो मैं आपके लिए चलो थोड़ा सा अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, बट अगेन यू हैव टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश एंड योर सेंटेंस मस्ट बी वेरी वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब इसका एंटोनिम करते हैं। एंटोनिम का मतलब है इफेक्चुअल और प्रोडक्टिव। अब देखो कितना सिंपल है, एक चीज अनप्रोडक्टिव है मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, तो दूसरी चीज क्या होगी उसके ऑपोजिट इफेक्चुअल, मतलब वो अच्छी होगी और प्रोडक्टिव होगी। तो इसका सिंपल सेंटेंस वही है, द लैंड दैट इज कंसीडर्ड टू बी फर्टाइल इज एब्सोल्युटली इफेक्चुअल इन नेचर, द लैंड दैट इज नॉट बैरन विल बी प्रोडक्टिव इन नेचर, मतलब कि उससे कुछ पैदावार होगी, उससे फसल उगेगी, उसमें उपजाऊ क्षमता होगी, और जिसमें उपजाऊ क्षमता है तो वो लैंड में जो फसल है वो भी बहुत अच्छी होगी, किसान अपनी फसल भी बेच सकेगा, तो मतलब वो प्रोडक्टिव है, हमें इन रिटर्न कुछ मिला, कुछ अच्छा रिजल्ट, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो वो उसको हम इफेक्टिव और इफेक्चुअल और प्रोडक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग होता है टू पार्डन। एब्सॉल्व का मीनिंग होता है टू पार्डन और टू फॉरगिव। ये किया था हमने पहले भी, पार्डन मतलब माफ करना, फॉरगिव का मतलब भी माफ करना होता है। तो एब्सॉल्व का पहले मतलब ये है कि किसी को माफ कर देना। अब उसका ऑपोजिट क्या है, कंपेल एक्यूज, मतलब कि किसी पे इल्जाम लगाना। ठीक है, सो एब्सॉल्व का सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं हम सेंटेंस, ओके, ही वॉज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, ही वॉज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द चार्जेस बाय द कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने जो उच्च हमारा कोर्ट होता है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, न्यायालय बोलते हैं उसको, तो उसने एक आदमी या कोई भी हो सकता है, कोई इंसान होगा, उस पर कोई चार्ज लगा, कोई अपराध लगा होगा, लेकिन वो बंदा छूट गया, वो उसको बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने, तो ही वॉज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द क्राइम। जो भी उस पर इल्ज़ाम लगे थे वो सारे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिए, तो उसको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया। ऑन दी अदर हैंड कंपेल एक्यूज, ये इसका देखो ऑपोजिट हो जाएगा, दैट कोई भी नाम ले लो, जैसे चलो नाम क्या लेना, वैसे बोल देते, दिस पर्सन इज हाईली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट या रॉबरी, मतलब इस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने किसी के घर में डाका मारा होगा या ये चोरू चक्का होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो ये एब्सॉल्व का ऑपोजिट है, कंपेल और एक्यूज। ठीक है जी, ओके। एकॉर्ड, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मीनिंग होता है एग्रीमेंट, हार्मनी। ठीक है, एकॉर्ड देखिए, एकॉर्ड आपको आई टेल यू वन थिंग, एकॉर्ड ऑल्सो मीन्स व्हेन टू कंट्रीज साइन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज साइनिंग अ ट्रीटी और ए डॉक्यूमेंट, देखो अभी ट्रीटी बोला, वो भी अकॉर्ड ही होता है, डॉक्यूमेंट होता है। इंडिया इज साइनिंग अ ट्रीटी विद जापान बेस्ड ऑन बुलेट ट्रेन, तो मतलब क्या किया, मतलब एकॉर्ड साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, मतलब दोनों जो देश हैं या दोनों जो अपने अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ हम म्यूचुअली इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, तो उसको एकॉर्ड बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एग्रीमेंट होगा या हार्मनी, उसको हार्मनी भी बोलते हैं। ठीक है, हार्मनी मतलब इन अकॉर्डेंस, हार्मनी मतलब इन जो भी सिचुएशन चल रही है उसके साथ, ठीक है, एग्री करना, तो उसको हार्मनी बोलते हैं। उसके बाद इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, डिसएग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड, मतलब कि एग्री नहीं किया और उससे, या डिस्कॉर्ड मतलब उससे ऑपोजिट कोई व्यू है, तो उसको हम डिस्कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे अकॉर्ड व साइन वो मैंने आपको बता दिया, तो डिस्कॉर्ड या डिसएग्रीमेंट का हम ये बता सकते हैं कि देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्कॉर्ड on a view that if a person without handkerchief or any kind of clothing on his face moves out, that person will be highly, that sentiment या that particular thing will be in accordance with the disagreement,
दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी इन अकॉर्डेंस विद डिस्कॉर्ड। कहने का मतलब ये था कि अगर इस सिचुएशन में, इस गाइडलाइंस या लॉकडाउन की सिचुएशन में कोई प्राणी ये कहता है कि मैं बिना मुंह में कोई भी खादी का या कोई भी कोई कपड़ा हो या रुमाल हो, उसके बिना मैं ऐसे ही खुले में घूमूं, तो वो जो बात है सभी लोग उससे बहुत डिस्कॉर्ड करेंगे, मतलब वो जो बंदा कर रहा होगा उससे एग्री नहीं करेंगे, डिसएग्रीमेंट रखेंगे। ठीक है जी। तो बाकी मैं आपको अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, अगली वीडियो में बताता हूँ।